So once again welcome to my channel, and today we are going to talk about the solar and the lunar eclipse. What is solar eclipse and what are lunar eclipse? Let's begin. First, basic information about the solar and lunar eclipse is that during the lunar eclipse, if we talk about the lunar eclipse, during the lunar eclipse, the earth comes between the moon and the sun. And during the solar eclipse, the moon comes between the sun and the earth. This is what is the solar and the lunar eclipse. Let's explore more further and see in detail what is solar eclipse and lunar eclipse. First of all, before going to understand the solar and lunar eclipse, we have to understand a thing that as this is the sun and the earth is rotating around the sun in an elliptical path. This is not circular, but this is elliptical path. And the moon, here you can see this is the moon, it is revolving around the earth also in the elliptical path. They all are revolving in elliptical path. And but the plane, the if we consider the plane in which the earth is revolving, the plane of the moon is 5 degree tilted. कि दोनों का जो प्लेन है वो सेम नहीं है. कि अगर हम लोग एक शीट की बात करें तो एक ही शीट पे नहीं है. जो मून का है वो थोड़ा सा टिल्टेड है 5 डिग्री, और यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो भी हमारा इक्लिप्स होता है. लेट्स सी वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको समझना होगा पहले कि वैक्सिंग और वेनिंग ऑफ मून होता क्या है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देखिए, इफ़ यू कंसिडर दीज आर द सन रेज विच आर कमिंग हियर, these are the sun rays which are coming here, and this is earth. Now as we know, the moon is revolving around the earth. Now this is night, and if the moon is here, the half part of the moon is enlightened and half is dark. We will see only the dark part. So this is the new moon day, that is Amavasya. On that day we can't see the any moon on, and then it moon goes on, and on one day the half part is lighted, and which is lighted, this that face is on our side, so we can see the full moon, and this is how we see the full moon. So this is how this goes on. नाउ मून सेट अपॉजी एंड पेरिजी. व्हाट यू मीन बाय अपॉजी एंड पेरिजी? देखिए, जब भी मून रिवॉल्व कर रहा है इलेप्टिकल ऑर्बिट में, तो एक बार वो मून अर्थ के बहुत पास आएगा और एक बार बहुत दूर जाएगा. जब पास आएगा तो पेरिजी बोलेंगे, और जब दूर जाएगा तो अपॉजी बोलेंगे. यस, व्हेन इट कम्स नियर दिस इज कॉल्ड पेरिजी, व्हेन इट इज गोड दिस इज कॉल्ड अपॉजी. पेरिजी मतलब पास, अपॉजी मतलब दूर. आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं. ए का मतलब अवे होता है तो अपॉजी, पी का मतलब पास तो पेरिजी. Yes, this is how the revolves. This plays a very important role in the eclipse. Let's see. Now lunar eclipse. If we talk about the lunar eclipse, there are two types of lunar eclipse, total and partial. अब total और partial हमें दिखता कैसे है और दोनों में difference क्या है total और partial lunar eclipse में. Let's see that. If we talk about, as you can see, during the lunar eclipse, the earth is coming between the moon and the sun. So what will happen if we are on the earth somewhere here, and this is night part, so, and we have seen that if the moon is here, so this is the new moon day, sorry, this is the full moon day, because we are able to see the full moon. This is the full moon day. And what will happen, as the shadow of the earth will fall on the moon, and we will not able to see the moon. जो तीनों क्या हो जाते हैं उस दिन एक सेम प्लेन में आएंगे, वो स्ट्रेट लाइन में आते हैं. तो इसीलिए जो अर्थ का शैडो है वो मून पे पड़ता है और मून को हम लोग नहीं देख पाते. तो वहाँ पे जब पूरा मून नहीं दिखेगा तो टोटल लूनार इक्लिप्स, और जब थोड़ा सा पार्ट मून का नहीं दिखेगा तो वो होगा पार्शियल लूनार इक्लिप्स. Coming towards the lunar eclipse, it occurs on full moon day, but not every full moon day. This is because कि हम हमेशा full moon को जो प्लेन्स हैं वो सेम नहीं होंगे. हमेशा 5 डिग्री का डिफरेंस होता है, लेकिन कभी कभी वो डिफरेंस कम हो जाता है. जब वो डिफरेंस 0 होगा तो हमें लूनार इक्लिप्स दिखेगा. लूनार इक्लिप्स
कभी ऑकर होगा सन मून अर्थ आर इन सेम प्लेन इन सेम लाइन। मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है लूनार इक्लिप्स का 107 मिनट एंड 107 मिनट्स। दिस इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द टोटल लूनार इक्लिप्स। इससे ज़्यादा टोटल लूनार इक्लिप्स नहीं होगा, 107 मिनट्स तक ही होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में 3 पार्ट्स हैं, टोटल, पार्शियल एंड एनुलर सोलर इक्लिप्स। सो लेट्स बिगिन। Now as you can see here, during the solar eclipse, the moon is coming between the earth and the sun. Yes, so when we are watching from the earth, as the moon is coming in between, so the moon will obstruct the light of the sun and we will not able to see the light of the sun. This is how the solar eclipse occurs. तो यहाँ पे दिया है कि देखिए अगर सन की लाइट आ रही है हमारे पास, ये सन की लाइट आ रही है और ये मून है, तो मून ने लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप ये कोन देख सकते हैं, ये कोन छोटा सा है, तो ये जो कोन है यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे होंगे उनको इस टाइम पे पूरा टोटल इक्लिप्स दिखेगा, क्योंकि यहाँ से पूरा सन नहीं दिखने वाला। लेकिन जो लोग यहाँ पे होंगे, ये जो यहाँ पूरा लाइट दिख रहा है यहाँ पे होंगे, उनको पार्शियल लूनार टोटल सोलर इक्लिप्स दिखेगा। पार्शियल क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा सा सन का पार्ट दिखता रहेगा। बट जो लोग यहाँ होंगे जिसको उम्ब्रा बोलेंगे, ये पूरा कोन के अंदर, तो वहाँ पे आपको सन थोड़ा सा भी नहीं दिखेगा, तो वो टोटल लूनार इक्लिप्स होगा। और जहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा वो होगा हमारा डेट इज़ द पार्शियल इक्लिप्स। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है, डेट इज़ द एनुलर सोलर इक्लिप्स। तो एनुलर सोलर इक्लिप्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं। देखिए अभी वो जो हम लोगों ने सोलर इक्लिप्स देखा वो कब हुआ, जब मून जो था वो पेरिजी में था। लेकिन जब मून अपॉजी में, मतलब मून जो है अर्थ से दूर है, तो जब मून अर्थ से दूर है डेट इज एट द अपॉजी, तो जो मून सन की लाइट आएगी और मून के ऊपर, मून उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, लेकिन जो उम्ब्रा है वो फॉर्म नहीं होता अर्थ सरफेस पे। देखिए थोड़ा सा ऊपर ही कोन फॉर्म हो गया है, तो इसकी वजह से वो पूरा लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाता। और जो लोग यहाँ पे रहेंगे उनको एक रिंग जैसा दिखेगा, जिसको बोलेंगे एनुलर सोलर इक्लिप्स। वो तभी होगा जब जो मून है वो अपॉजी में होगा, तभी हमें एनुलर सोलर इक्लिप्स दिखेगा। लेकिन उसी टाइम पे जो लोग यहाँ पे रहेंगे उनको पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखेगा। सबको एनुलर नहीं दिखेगा, कुछ ही लोग को दिखता है ना। सोलर इक्लिप्स कभी ऑकर होगा ऑन न्यू मून डे, बिकॉज न्यू मून डे पे हमें क्या होता है, मून बीच में आ जाता है ना, अर्थ, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है न्यू मून डे पे, और सन मून और सेम प्लेन में होंगे और सेम लाइन में होंगे। मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगा टोटल सोलर इक्लिप्स का, 7 मिनट 20 सेकेंड्स। ये मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है सोलर इक्लिप्स का, टोटल सोलर इक्लिप्स का। और एनुलर का 12 मिनट्स 30 सेकेंड। ना हमें क्यों बोला जाता है कि सेफ्टी लेना चाहिए जब भी हम लोग इक्लिप्स देखते हैं, तो दिस इज बिकॉज कि सन जो है वो हमेशा हार्मफुल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज को छोड़ता रहता है। तो वो जो रेज हैं वो हमारे आँखों को हार्म कर सकती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सन को देखने के लिए हमें स्पेशल जो इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज करना चाहिए। बिकॉज जो फिल्टर्स हैं, जो गॉगल्स हैं या बाइनोकुलर्स हैं वही देखना चाहिए, या पिन होल कैमरा होना चाहिए। नॉर्मल सन ग्लासेस से नहीं देखना है, बिकॉज इंफ्रारेड रेज यू कैन एंटर इन योर आई एंड दे कैन हार्म यू, उसकी वजह से हमारी जो आँखें हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हमें दिखना बंद हो जाए। सो वाइल वॉचिंग दिस इक्लिप्सेस बी सेफ। थैंक यू।